Hello students, how are you guys? I hope all of you doing good and fine. Guys, myself Lohit Jindal and I welcome you all in our next session of INMO flashback series. Guys, in this series we are solving previous year INMO questions starting with the year 2000, and so far we have solved till INMO 2009 completely. You can find all those questions and videos basically on posted on our channel. Playlist has also been formed. You can see it under the playlist section as well. You can find it there also. So guys, in each video we are solving one question at a time. Okay, in each video we are solving one question. So currently we are going through INMO 2010. Rather, with today's question, today we are going to solve the last and the sixth question of INMO 2010, and all the five previous questions has already been posted as well. तो आपको सारे आज के वीडियो के एंड पे, with the end of this video, you'll be having all the INMO question paper solutions starting with year 2000 till 2010. So 11 years worth of questions and their solutions will be posted by the end of this video. Okay, all right. So guys, आज का जो question है, that is kind of a bit common sense and logical. देखते हैं कैसे है वो question, because अगर मैंने मेथड का नाम ले लिया फिर आपको पता लग जाएगा कि कैसे करना है. ओके, सो आई विल नॉट टेल यू दैट राइट नाउ. ठीक है, मैं आपको क्योंकि पहले टाइम दूंगा उसको सॉल्व करने के लिए, राइट. बट यस, टुडेज क्वेश्चन हैज टू पार्ट्स. उस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं जो हमें सॉल्व करने हैं, राइट. विल कम टू दैट. So before beginning, guys, let me introduce myself. My name is Lohit Jindal and I've done my BTech from IIT Bombay, and I've been teaching mathematics since past 9+ years since graduating uh, for various competition exams like IIT JEE, Maths Olympiads, KVPY, etc. Okay, so let us begin guys, है ना. Let us see the questions. Let us begin and देखते हैं कैसे questions आते हैं, right. And guys, this is the last and the sixth question of INMO 2010. Okay, 2010 का last question है ये. And please guys read this question once. मैं एक बार बोल देता हूँ. Define a sequence an, n greater than equal to 0 के लिए है, by a0 is given as 0. First like 0th term, or what you can say, a0 is 0 and a1 is 1, and for the further terms you have been given this formula, okay, which is the relation between to get a term. What you have to do basically is, this is given that an कैसे मिलेगा, उसके जस्ट पिछले वाले टर्म का ट्वाइस प्लस पिछले से पिछले टर्म को ऐड करना है. सो बेसिकली यू हैव टू ऐड द टू टर्म्स, टू प्रीवियस टर्म्स विद 2 मल्टीप्लाइड विद द इमीडिएटली प्रीवियस टर्म. इस तरह से ऐड हो रहा है, ठीक है. Alright, so the two parts are given for every m greater than 0 and j goes from 0 to m. We have to prove that 2 times am divides am plus j plus minus 1 power j a of m minus j. तो ये part है, first part is this, and b part is, they say if 2 power k, or suppose 2 power k divides n for some natural number n and k, you have to prove that 2 power k divides am. So these are the two parts guys. So guys, first of all, I would like you guys to please pause this video and please try this question by yourself, है ना. I've said this a million times now, I guess. मतलब बहुत बार बोल दिया, अब तो हर वीडियो में बोलता हूँ ये बात कि प्लीज पॉज कर दो और उसको खुद ट्राई करो, बिकॉज अगर आप कर पाते हो देन दैट इज वेल एंड गुड, राइट. इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस. एंड अगर नहीं भी होता है, यू विल गेट टू नो द मेथड. बट अगर आपने मेथड पे क्वेश्चन पे एफर्ट किया होगा 1-1.5 घंटा कम से कम, तो आपको थोड़ा बेटर रिटेन होगा आपके माइंड में, एंड यू विल नो व्हाई दिस मेथड वर्क्स एंड व्हाई सम अदर मेथड्स डज नॉट वर्क, राइट. वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. इट विल हेल्प यू इमेंसली इन द एग्जाम एनवायरनमेंट. ओके, मतलब एग्जाम देने के पर्सपेक्टिव से वो चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी. ओके, सो लेट अस सी गाइज. आई होप सबने ट्राई कर लिया ये वाला क्वेश्चन. ओके, हैव गॉन थ्रू दिस क्वेश्चन नाउ. सो लेट अस ट्राई एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, सो गाइज देखो क्या दिया हुआ है, दैट an is equal to 2 times an minus 1 plus an minus 2. ये दिया हुआ आपको. For the a part, let us start with the a part. तो guys इसके अंदर ना हम एक मेथड यूज करेंगे which is like you can say induction और you can say recurring. मतलब हम एक ऐसा रिलेशन क्रिएट कर देंगे कि हम प्रूव कर देंगे कि इनिशियल वैल्यूज डालते डालते वो एंड तक भी चले जाएगा. ओके, लेट अस सी. सो गाइज an की वैल्यू आपको पता है ना. लेट अस डिफाइन अ फंक्शन f of j. एक फंक्शन डिफाइन करते हैं जो हमें डिविजिबिलिटी भी प्रूव करनी है ना, ये वाले एक्सप्रेशन की डिविजिबिलिटी प्रूव करनी है ना. सो लेट अस टेक दिस फंक्शन टू बी f of j which is a of m plus j plus minus 1 power j a power m minus j.
ये बोल सकता हूँ। देखो गाइस इंडक्शन का मेथड कैसे वर्क करता है कि 1 के लिए प्रूव कर दिया, 2 के लिए प्रूव कर दिया और k के लिए मान के k+1 के लिए प्रूव कर दिया, कुछ इस तरह से वर्क करता है, राइट। सो हम आधा फॉर्म यूज करेंगे, लेट अस अंडरस्टैंड कैसे। सो गाइस देखो, इन दिस केस व्हाट इज f ऑफ 0, इफ आई एम अज्यूमिंग दिस एक्सप्रेशन टू बी f ऑफ j, इसके अंदर f ऑफ 0 क्या दिख रहा है आपको, व्हाट इज f ऑफ 0 इन दिस, मीनिंग j को 0 डाल दो, so you'll get a of m प्लस j को 0 डाला दो, ये वाला साइन क्या आ जाएगा, -1 पावर 0 इज 1 प्लस a m आ जाएगा, so that is 2 times a m, right? That is very easily you can say now that 2 times a m divides f of 0, ये तो दिख ही रहा है, बहुत इजी है, वो उसकी वैल्यू 2 times a m आ गई है, राइट, विच मीन्स दैट 2 a m जो हमें प्रूव करना है ये वाला एक्सप्रेशन इज डिवाइडिंग f of 0, ओके। सेम वे गाइज इसका ही देखते हैं, what is f of 1, okay, what is f of 1, a m plus 1, ठीक है, ओके, मैं थोड़ी यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ पे देखते हैं, ओके, लेट अस सी what is f of 1, you will get f of 1 as देखते हैं a of m plus 1, क्योंकि -1 की पावर 1 हो जाएगा गाइस, ठीक है, -1 की पावर j है, j की वैल्यू 1 है, सो इट विल बिकम नेगेटिव साइन, राइट, ओके, थोड़ा ना साइन बड़ा दिख रहा है, a m plus 1 माइनस a of m minus 1, राइट, ऐसा दिखेगा। सो गाइस इसको अब थोड़ा यूज करते हैं इस फॉर्मूला का, सो हाउ कैन आई राइट a m plus 1 इन टर्म्स ऑफ a m, ठीक है, या फिर गाइस सिंपल है ना, जस्ट राइट n की वैल्यू एज, इसके अंदर n की वैल्यू को n प्लस लेट अस से n को n plus 1 डाल देते हैं, देखो रिप्लेस n इक्वल टू n plus 1 और m plus 1, ठीक है, आप m plus 1 डालो, देखो क्या मिलेगा, यू विल गेट a m plus 1 इज इक्वल टू 2 times a m, है ना, n को m plus 1 डाल रहे हो, प्लस a of m minus 1, राइट, सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग, a m plus 1 माइनस a m, यहाँ से क्या मिलेगा, a m plus 1 माइनस a m minus 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a m, तो इसी का यूज कर दो, सो a m plus 1 माइनस a m minus 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a m, which implies that 2 of am again divides f of 1। तो गाइज हमें ये पता लग गया कि जो twice of am है, वो जो एक्सप्रेशन है, it divides f of 0 as well as f of 1। Now guys think about this, if somehow I am able to create a function or a relation about among f of 2 with f of 1 and f of 0, right, previous two terms के साथ अगर हम relation create कर सकें, so this thing will keep on recurring, right, अगर 2 times am f of 0 और f of 1 को डिवाइड करता है, एंड f of 2 को अगर मैं किसी तरह f of 0 और f of 1 के रिलेशन में लेके आ गया तो दोनों को डिवाइड करता है, तो f of 2 को भी करेगा, राइट, सो इट विल बिकम अ चेन लाइक दैट थिंग, राइट, दैट इज इंडक्शन काइंड ऑफ थिंग। इंडक्शन का प्रिंसिपल तो बेसिकली यही होता है ना, तो वही चीज हम इसमें यूज करेंगे, बट लेट अस सी, नाउ लेट अस सी सम बेसिक f of k। एक काम करते हैं ताकि वो वेरिएबल में कंफ्यूजन ना हो, ओके, कौन कौन से वेरिएबल यूज हो रखे हैं, j एंड ओके आर मान लेते हैं, आई गेस आर इज नोवेयर देयर, ठीक है, एफ ऑफ आर एक एक्सप्रेशन यूज करते हैं गाइस, है ना, लेट अस यूज एन एक्सप्रेशन एफ ऑफ आर विच इज अगेन ऑफ कोर्स बिटवीन 0 to j, ठीक है, ओके, 0 to m भी बोल सकते हो, एक्चुअली 0 to m, ठीक है, जनरल रिलेशन लिया हमने विच इज a ऑफ m प्लस r प्लस -1 पावर r इंटू a ऑफ m माइनस r, राइट, बट गाइज इनके लिए हम क्या करेंगे, हम विल ट्राई टू ब्रेक डाउन दीज फॉर्मूला, सी हम क्या करेंगे, a ऑफ m प्लस r, ओके, विल ब्रेक इट डाउन, विल राइट a ऑफ m प्लस r एज द प्रीवियस टू टर्म्स यूजिंग द फॉर्मूला, है ना, जो हमें फंक्शन रिलेशन दिया हुआ है टर्म का पिछले दो टर्म्स के साथ, वो लिखते हैं। देखो फर्स्ट टर्म को क्या लिखेंगे, इट मीन्स a ऑफ m प्लस r इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a ऑफ m प्लस r माइनस 1, एक कम करते हैं ना, यूजिंग दिस रिलेशन गाइज जस्ट पुट n इक्वल टू m प्लस r, ठीक है ना, इसके अगर आप अंदर n को m प्लस r डाल दोगे, आई एम ये जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग दैट, प्लस a ऑफ m प्लस r माइनस 2, ये तो हमने ब्रेक डाउन किया a ऑफ m प्लस r को, राइट, a m प्लस r को। नाउ लेट अस राइट a ऑफ a m माइनस r, जो ये वाला टर्म है, इस केस में गाइज पिछले दो टर्म्स में नहीं जाएंगे, आई विल यूज सम अदर थिंग, इसको मैं क्या अंडरस्टैंड करूंगा, a ऑफ a m माइनस r को आई विल कंपेयर इट विद a n माइनस 2, ठीक है ना, समझ रहे हो, मैं यहाँ पे आपको लिख के भी दिखा देता हूँ, a n माइनस 2 को अगर लिखना हो
if I have to write a of n minus 2, it will be an minus twice of a n minus 1, right? So now in this thing, you are comparing, or you can say you are replacing m minus r as n minus 2, right? क्या लिख रहा हूं देखो, n minus 2 को क्या लिख रहा हूं मैं, m minus r. So what does that mean? फॉर्मूला के अंदर आपको n को क्या डालना है, m minus r plus 2. Getting the point? तो आपको अब ये समझ में आ जाएगा, इसमें ये पुट कर रहे हो आप, ठीक है? सो a ऑफ a m minus r का मतलब क्या हो जाएगा, ये रिप्लेस करोगे आप इसके अंदर. सो दैट इज सी दिस प्लस माइनस 1 की पावर r कॉमन आ जाएगा. व्हाट विल बी देयर इनसाइड द ब्रैकेट, a m minus r को रिप्लेस कर रहा हूं, राइट? m minus r को मैं n minus 2 लिख रहा हूं, और यू कैन से n minus 2 डाल रहा हूं. तो n की वैल्यू क्या होगी, m minus r plus 2. सो पुट इट फ्रॉम देयर. व्हाट इज an? an is a m minus r plus 2, राइट? माइनस 2 टाइम्स a, n की वैल्यू m माइनस आर प्लस 2 है, तो माइनस 1 भी हो रहा है उसमें से. सो a m माइनस आर प्लस 1, ये बन गया आपके पास. नाउ योर जॉब इज ऑल प्रैक्टिकली डन गाइज. देखो कैसे, लेट अस अंडरस्टैंड गाइज. इसको एक्सपैंड करते हैं, राइट? ओपन अप द ब्रैकेट्स. सो लेट अस राइट दिस वे. मैं इस टर्म को और इस टर्म को इकट्ठा लिखता हूं. सो गाइज यू कैन से आई कैन टेक 2 कॉमन. क्या आएगा उसमें, a m प्लस r माइनस 1 एंड देखो गाइज माइनस साइन है, राइट? देयर इज अ नेगेटिव साइन है, तो माइनस 1 पावर r a m माइनस r. मैं इसको ऐसे लिख के दिखा दूं आपको, m माइनस r माइनस 1, ऐसा लिख सकता हूं ना. इट्स m माइनस r प्लस 1, सो आई कैन राइट एज m माइनस r माइनस 1, राइट? करेक्ट, यहां तक क्लियर हो गया. प्लस दो दूसरा टर्म बचेगा अभी, अब इसको लिखते हैं, कंबाइन करते हैं इसको और इसको. सो यू कैन सी द अदर ब्रैकेट विल कंटेन द टर्म्स a m प्लस r, रादर आप ऐसे लिख सकते हो r माइनस 2, ठीक है? ब्रैकेट में डाल देता हूं बस, कोई फर्क नहीं है. प्लस माइनस 1 पावर r a ऑफ m माइनस r और m माइनस r माइनस 2, राइट? इट्स स्टिल m माइनस r प्लस 2, राइट? बस नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो r माइनस 2 हो गया. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड बोथ दीज एक्सप्रेशंस, राइट? सो गाइज अब आपको डाउट आ रहा होगा लिखें कैसे. वन थिंग इज डायरेक्ट गाइज, ये वाला टर्म तो डायरेक्ट है. यू कैन सी दिस टर्म इज कंप्लीटली डायरेक्ट. इसको आप क्या लिख सकते हो, कांट आई राइट f ऑफ r माइनस 2, है ना? इस फॉर्मूला के अंदर r को r माइनस 2 रिप्लेस किया हुआ है. सो दिस इज बेसिकली f ऑफ r माइनस 2, करेक्ट? ये तो क्लियर हो गया. नाउ व्हाट अबाउट द फर्स्ट टर्म, इसका क्या करें भाई? यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस है गाइज. यहाँ पे गाइज एक और चीज का पहले मैं डाउट क्लियर कर देता हूं. आपने सोचा होगा सर यहाँ पे तो माइनस 1 की पावर r है, यहाँ पे r माइनस 2 होना चाहिए था. सो गाइज माइनस 1 पावर r, ओके, ये बात भी क्लियर होनी चाहिए. माइनस 1 पावर r इज इक्वल टू माइनस 1 पावर r माइनस 2, है ना? वाई? क्योंकि माइनस 1 की पावर r माइनस 2 और माइनस 1 की पावर की r क्यों इक्वल है? क्योंकि दिस इज इक्वल टू माइनस 1 पावर r डिवाइडेड बाय माइनस 1 का स्क्वायर, which is 1 anyways. This is anyways 1, right? तो इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा. So minus 1 par r is same as minus 1 par r minus 2. So मैं इसको r minus 2 भी लिख सकता हूं अपनी मर्जी से, right? कन्वर्ट कर सकता हूं. So it will not be an issue, right? f of r minus 2 आ जाएगा. And now similarly guys, ये वाला नेगेटिव साइन को अगर मैं अंदर लेके जाना चाहता हूं, तो या तो मैं उसकी पावर को r minus 1 लिख दूं या r plus 1 लिख दूं, right? दोनों तरीके से सही है ना, क्योंकि माइनस 1 कैन ऑल्सो बी थॉट ऑफ एज 1 अपॉन माइनस 1 और ऑल्सो एज माइनस 1, ठीक है? आप ऐसे सोच सकते हो, या फिर आप ऐसा कह सकते हो, टेक अ माइनस 1 कॉमन आउटसाइड ऑफ दिस टर्म, ठीक है? तो मैं उसको लिखता हूं, देखो 2 टाइम्स a m प्लस r माइनस 1. अब आप सोचो गाइस, माइनस 1 की पावर r है, उसमें से एक माइनस 1 बाहर निकाल लिया तो प्लस 1 हो गया, एक तो यहां से प्लस साइन हो गया, और इट विल बी लेफ्ट विद माइनस 1 पावर r माइनस 1, ठीक है? and a m minus r minus 1 like this. and ये तो ऑलरेडी f of r minus 2 में बता ही चुका हूं आपको, करेक्ट? नाउ गाइस अगेन ऑब्जर्व दिस एक्सप्रेशन केयरफुली. ये वाला एक्सप्रेशन अब क्या बन गया है? isn't it f of r minus 1 नाउ, ठीक है? क्लियर दिख रहा है f of r minus 1. तो गाइस फाइनली आपको क्या मिला है? f of r is equal to 2 times f of r minus 1 right? 2 times f of r minus 1 plus f of
r minus 2, राइट। ये आ गया आपके पास फाइनली। दिस इज अ फाइनल एक्सप्रेशन दैट यू हैव बीन एबल टू फॉर्म, एंड दिस इज एक्चुअली द कॉन्सेप्ट दैट इज बेसिकली, इससे आप समझ सकते हो आपका क्वेश्चन प्रैक्टिकली कंप्लीट हो गया ये पार्ट। कैसे गाइस, देखो व्हाट डज दिस इंप्लाई, f ऑफ 0 और f ऑफ 1 को डिवाइड करता है 2am, है ना। 2am इज डिवाइडिंग f ऑफ 0 एज वेल एज 1, सो पुट r इक्वल टू 2 नाउ। r को 2 डालोगे तो क्या आएगा, f of 2 equal to 2 times f of 1 plus f of 0. From this thing, won't you say that 2am divides f of 2? क्योंकि f of 2 is basically in the form of f of 1 and f of 0, दोनों डिवाइड होते हैं 2am से, तो f of 2 भी डिवाइड होगा। आप r को 3 डाल दो तो आपको मिलेगा f of 3 is equal to 2 times f of 2 plus f of 1, तो इसको भी डिवाइड करेगा 2am, क्योंकि f of 2 को भी डिवाइड करता है, f of 1 को भी डिवाइड करता है, right? So okay, let me scroll down guys. So just like this you can prove for r equal to m, जाते रहोगे, right? This is what you needed to prove for r equal to j, तब जाते जाओगे, so you'll get finally f of j. So you'll actually get, so just like this 2am will divide f of j, और यही हमें प्रूव भी करना था, तो इस तरह से चलता जाएगा सीक्वेंस में, सबको डिवाइड कर रहा है, करता जाएगा, और r इक्वल टू j के लिए भी करेगा, है ना, राइट। गॉट दिस कॉन्सेप्ट गाइस, तो a पार्ट आपका हो गया है, राइट। रादर फॉर एवरी m हो रहा है, r विल गो अप टू m, राइट। सो दिस विल बी ट्रू, तो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया आपका इस तरह से विद द रिकरेंस थिंग, बिकॉज f ऑफ r इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रीवियस टू टर्म्स, एंड वो दोनों टर्म्स am से डिवाइड होती हैं 2am से, तो इस तरह से सारी टर्म्स डिवाइड होती जाएंगी, राइट। आई होप यू हैव गॉट द जिस्ट ऑफ दिस थिंग, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको, राइट। इट्स जस्ट लाइक हाउ द इंडक्शन वर्क्स, इंडक्शन भी तो ऐसे ही होता है, राइट। तो आपने प्रूव कर दिया इसको, आई होप इट इज क्लियर, राइट। नाउ लेट अस कम टू द बी पार्ट गाइस, वो और भी इजी है। बी पार्ट में क्या बोला जा रहा है, देखो सपोज 2 पावर k डिवाइड्स n, ओके, चलो थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूं, ओके, लेट अस राइट बी पार्ट के लिए क्या बोला जा रहा है, देखो सपोज 2 पावर k डिवाइड्स n, सो गाइस कैन आई से दैट n इज ऑफ द फॉर्म 2 पावर k इनटू l, कुछ ऐसे मान लेते हैं, है ना, 2 पावर k इनटू l, ठीक है। So now what we have to prove is, we have to prove that 2 power k divides an as well. That is what we have to prove, 2 power k divides an, ठीक है। तो इसके लिए वर्क करते हैं, थोड़ी जगह नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, देखते हैं, ठीक है। So 2 power k into l है n की वैल्यू, एंड वी हैव टू प्रूव, यहाँ पे लिख लेते हैं ना, टू प्रूव क्या है, that 2 power k divides an, right? This is what I have to prove. Now let us see कैसे प्रूव करेंगे गाइस। सी गाइज, हमने ये प्रूव तो कर लिया ना, अच्छा अब ये फॉर्म प्रूव कर लिया था ना, दैट हमने बोला 2am डिवाइड्स f ऑफ j, अब j की वैल्यू m के लिए भी डिवाइड करेगा, सो दैट मीन्स व्हाट इज f ऑफ m, चेक करें, am माइनस m प्लस माइनस 1 पावर m, a पावर सॉरी a ऑफ m प्लस m माइनस m, ओ सॉरी यहाँ पे m प्लस m आना था, राइट, यहाँ पे m प्लस m है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, यहाँ पे m माइनस m आ जाएगा। डजंट इट मीन गाइज a ऑफ 2m, बिकॉज a ऑफ 0 तो 0 है, राइट, a0 इज 0, सो इट मीन्स a 2m है, सो f ऑफ m इज a 2m, एंड अकॉर्डिंगली वी नो, यहाँ पे j की जगह m कर लेते हैं, राइट, इट शुड ऑल्सो बी करेक्ट ना, 2am डिवाइड्स f ऑफ m, सो नाउ एंड f ऑफ m इज 2am, विच इम्प्लाइज 2am डिवाइड्स a of 2m, करेक्ट, ये बात बोल सकते हैं हम, ये बोल पा रहे हैं ना, दिस थिंग इज ट्रू, वी कैन से 2am डिवाइड्स a 2m, वो हमने पहले प्रूव कर लिया है, a पार्ट का पार्ट यूज है यहाँ पे, वो हमने प्रूव कर लिया है, करेक्ट। सो 2 टाइम्स am डिवाइड्स a ऑफ 2m, क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं गाइस, यहाँ पे अब m की वैल्यू तो मैं कुछ भी डाल सकता हूँ ना, आई कैन रिप्लेस एनी वैल्यू ऑफ m, करेक्ट। तो एक काम करते हैं, लेट अस रिप्लेस m इक्वल टू 2 पावर k माइनस 1 टाइम्स l, ठीक है। अगर मैं ये रिप्लेस करता हूँ, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स 2 टाइम्स a m की वैल्यू डाल रहे हैं ना, a 2 पावर k माइनस 1 इंटू l डिवाइड्स a ऑफ, उसके अंदर ट्वाइस हो रहा है उसका, 2m का क्या मतलब हुआ, 2 पावर k इंटू l। तो गाइज यहाँ से मेरे को हिंट मिलना शुरू हो गया, देखो इफ m वैल्यू इज रिप्लेस्ड एज 2 पावर k माइनस 1 इंटू l, यू गेट 2 twice of a of
2 पावर k माइनस 1 इंटू एल डिवाइड्स टू a ऑफ 2 पावर k l। अब फिर अगर m को आप 2 पावर k माइनस 1 इंटू एल लिख दो तो गेट 2 टाइम्स a ऑफ 2 पावर k माइनस 2 इंटू एल, राइट, इंटू एल डिवाइड्स a ऑफ 2 पावर k माइनस 1 इंटू एल। फिर से चेन बनेगी गाइज, you'll get again a chain। हाउ, देखो यहां पे मिला आपको कि इट्स लाइक a डिवाइड्स b, देन सेकेंड स्टेप पे क्या मिल रहा है, c डिवाइड्स a, है ना। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आप क्या बोल सकते हो, लॉजिकली मैं आपको करके दिखा देता हूं। देखो अब इट्स लाइक यू कैन से राइट b डिवाइड c, फर्स्ट एक्सप्रेशन इज b डिवाइड c, देन यू हैव a डिवाइड्स b। तो इवेंचुअली आप दोनों ये लिख सकते हो ना, a डिवाइड c। मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। इट्स लाइक सेइंग यू हैव b डिवाइड c एंड देन यू हैव a डिवाइड्स b। फ्रॉम दीज टू थिंग्स वोंट यू से दैट a डिवाइड c, या फिर ऐसे बोलो a b को डिवाइड करता है, b फर्दर c को डिवाइड करता है, तो a डिवाइड करता है c को। सो यूजिंग दैट क्राइटेरिया वोंट यू से दैट दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे ना, ठीक है ना, रिप्लेस कर रहे हो। सो वोंट यू से 2 स्क्वायर a पावर, इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दोगे ना, सॉरी यू कैन से इसकी वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू यहां रिप्लेस करोगे एक तरह से। सो विल गेट 2 स्क्वायर टाइम्स a ऑफ k माइनस सॉरी a ऑफ 2 पावर k माइनस 2 इंटू एल डिवाइड्स a ऑफ 2 पावर k इंटू एल। ये बोल सकते हैं ना। अब यू आर गेटिंग टू अंडरस्टैंड गाइस। देखो मतलब एक्चुअली थोड़ा बेटर से बता सकता हूं, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। देखो लेट मी चेंज इट अगेन, ओके, यहां पे ध्यान से समझते हैं। देखो इट्स लाइक 2a डिवाइड्स b, है ना, मैं आपको लॉजिक बता देता हूं। 2a डिवाइड्स b एंड यू हैव 2b डिवाइड्स c। तो अगर यहां से 2a डिवाइड्स b है तो b को बोल सकता हूं इट्स 2a इंटू m और 2a इंटू x, लेट्स से। नाउ दिस मीन्स c इज इक्वल टू 2b इंटू वाई। अगर आप b का वैल्यू यहां पे रिप्लेस करते हो, वॉन्ट यू गेट c वैल्यू इक्वल टू 2 स्क्वायर ax इंटू वाई। मतलब जो 2 स्क्वायर a है इट डिवाइड c, तो वही मैं यहां पे कर रहा हूं, मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना पावर्स, मतलब जो कोफिशिएंट है फर्दर, ठीक है ना, तो वही होगा इसमें भी 2 स्क्वायर टाइम्स वो जो टर्म्स है a इट डिवाइड c। सो गाइज अंडरस्टैंडिंग दिस लॉजिक, अब ये बार बार जगह चलेगा, रिपीट दिस अगेन एंड अगेन, इवेंचुअली यू विल गेट जस्ट लाइक दिस। अगर आप ये बार बार स्टेप करते जाओगे, रिप्लेसिंग इट बैक, है ना। देखो 2 स्क्वायर है तो एक a ऑफ 2 पावर k माइनस 2 टाइम्स l आ गया। इफ यू डू इट वंस मोर, मैं लिख के दिखाता हूं, यू विल गेट 2 क्यूब इंटू a ऑफ 2 पावर k माइनस 3 इंटू l विल डिवाइड a ऑफ 2 पावर k l, विच इज n बेसिकली। उसको तो अब मैं a n ही लिख सकता हूं, इसको n ही लिख देता हूं, बिकॉज a ऑफ n की वैल्यू तो 2 पावर k इंटू l है, राइट, यूजिंग दिस। So you are getting this. So just like this, if I keep on going, I'll eventually get 2 power k into a of 2 power k minus k, क्योंकि देख रहे हो आप सम, क्योंकि पैटर्न देखना है गाइस यहाँ पे आपको। इफ यू कीप ऑन डूइंग दिस, देखो अगर बाहर 2 क्यूब था, नीचे 2 की a ऑफ 2 की पावर में k माइनस 3 था, तो जो पावर बाहर है उतना ही पावर k में से माइनस हो रहा है, तो k है तो k माइनस k हो जाएगा इंटू l, इट डिवाइड्स a n। So let us see guys, you will finally get 2 power k, तो next line में लिख देते हैं, you will eventually get 2 power k into a of, देखो 2 power 0 हो गया वो तो, that is al बचा, simple, right, al divides an। So guys अगर 2 power k into al divide an करता है तो that means 2 power k also divides an, right, so that is the method of proving this thing। प्रूव हो गया, the 2 power k will divide an। So just substituting and understanding the pattern, और वो दिखाना है आपको वहां पे, right? So I'll keep on doing this, right guys? So guys I hope this concept is clear। जनरल टर्म के लिए लिख के दिखा सकते हो ज्यादा से ज्यादा, और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, right? So that is the method to solve the, or you can say to prove this question। So I hope this thing is clear guys, you can have a look at it again, ठीक है। If you have not understood some step guys, मैं एक चीज आपको जरूर बोलूंगा guys, प्लीज जब भी आप सॉल्व करते हो ना, if you have not been able to solve और सोल्यूशन देख रहे हो वीडियो का, वीडियो देख रहे हो,
तो उसमें प्लीज ट्राई टू सॉल्व एंड राइट द स्टेप्स अलोंग साइड, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, गलती भी नहीं होगी और आपको अंडरस्टैंडिंग बेटर आएगी, बिकॉज आप सोच के अपने स्टेप्स लिख रहे होगे। डोंट जस्ट कॉपी इट ऑफ द स्क्रीन, थोड़ा समझ के वीडियो में क्या बोला फिर आप खुद से लिखो, दैट विल हेल्प यू इन द लर्निंग अ लॉट, ठीक है। आई श्योर यू ऑफ दैट थिंग। ओके, ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। आई होप दिस इज, आपको मजा आया ये क्वेश्चन करके। आप देख सकते हो इसमें कोई नई चीज ऐसे नहीं यूज हो रही है, जस्ट दैट यू हैव टू यूज द इंडक्शन एंड द रिकरेंस थिंग। थोड़ा सीक्वेंसेस एंड सीरीज का यूज समझ सकते हो इसको, right? I hope you guys enjoyed this question, and if you did guys, please like this video and subscribe to our channel so that you get the regular updates. Okay guys, so that's it guys. With this video we have completed 11 years question papers of INMO starting with the year 2000 till 2010. तो 11 साल के पेपर कंप्लीट हो गए हैं, right? So we'll come back with in the next video with the first question of INMO 2011. Okay, thank you guys, we'll see you in the next video. Till then, keep practicing and all the best. Bye bye guys, take care, bye bye.